Assalamu alaikum children. Hope you all are well. Today in this lecture we are going to discuss the remaining topics of chapter 2, that is data and data processing, and this chapter will be completed after the lecture. Information. As you all know, in the previous lecture we have discussed this topic, that is information. What is information? Information क्या है? एक ऐसा organized, arranged और meaningful form of data, इसको information कहा जाता है. Random और raw facts आपके पास data की सूरत में आते हैं, उसके बाद processing होती है उसके ऊपर, and then what we get in the result, the information or output. Here you can see on the screen some random sort of data or input, that is Shahid 90%, class 7, marks, teacher Mr. Ali. What we get after processing is a very organized and arranged or meaningful form of data or output. Yes, Shahid got 90% marks in class 7 and his teacher is Mr. Ali. This is information or organized or meaningful form of data. After giving input, computer processing करता है इसके ऊपर और हम information या output हासिल करते हैं. Now the next topic is electronic data processing cycle or EDP. A cycle which shows how data can be manipulated electronically. It is called EDP cycle. Basically, it consists of 4 different steps: input, process, output and storage. In this cycle, particular sequences or steps are to be followed. एक ऐसी cycle जिसमें data manipulate होके आपके पास एक organized form में आता है, उसके 4 stages को follow करते हुए, as you can see from arrows, कि पहले input है, उसके बाद उसकी processing होगी, उसके बाद उसका output है and storage. Both ways है, दोनों arrows हैं, ठीक है. इनका ये मतलब होता है both ways implications. ये particular steps को follow किया जाता है कि सबसे पहले input है, उसके बाद process आएगा, उसके बाद output, and then what we do with the output, either we store it or we use it. ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके को फॉलो करते हुए EDP साइकिल कंप्लीट होती है. We will discuss each and every step in the next slide. Electronic data processing cycle. This is the topic we are discussing. It is a term used to explain the sequence of steps or process used to process the raw data. It follows certain steps and it's a continuous use and processing of data, and it follows a cycle. Now come to the first stage of EDP, that is input. Input is the first step, which is the initial stage of this EDP cycle. In this, the raw data is processed in the more usable form, in the more convenient form for input. जो फर्स्ट स्टेज है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की, इसमें सबसे पहले है इनपुट. इनपुट है जिसमें जितना डेटा हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, जो रॉ डेटा है जिसको हमें प्रोसेस करना है, वो कंप्यूटर में एंटर किया जा रहा है. दिस इज़ कॉल्ड इनपुट. और ऑब्वियसली इसके लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. सम इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, स्कैनर, माउस, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर में हम रॉ डेटा यानी इनपुट एंटर करते हैं. The second step of EDP cycle is process. इस स्टेप में क्या होता है, जो डेटा रॉ डेटा हमने एंटर किया है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए,
वो कन्वर्ट होता है यूज़फुल फॉर्म में। और कन्वर्ट कौन करता है इसको? प्रोसेसिंग मशीन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। और यूजुअली डेटा जब सीपीयू में जाता है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और डेटा एक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। जब डेटा इन सारी चीज़ों से, इंस्ट्रक्शन से ऊपर गुज़रता है, उसके ऊपर वर्किंग होती है, जब वो हमारे पास कन्वर्ट होके यूजेबल और रीडेबल फॉर्म में जब आता है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट या आउटपुट। तो बेसिकली इनपुट एंटर होता है, डेटा हम इनपुट करते हैं, और उसके बाद उसकी फ़ौरन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। और प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? सीपीयू। एंड द डेटा फॉलोज अ कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस एंड सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इसके बाद हम तक आता है आउटपुट फॉर्म में। The third step of EDP cycle is output. In this step, results are obtained, जो कि डेटा के ऊपर जितना भी काम किया गया है, वो चूँकि पहले रॉ डेटा था, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद वो जब यूजेबल फॉर्म में हमारे पास आया है, उसको हम कहते हैं आउटपुट। अच्छा, आउटपुट जो है वो हार्ड कॉपी में भी आ सकता है, सॉफ्ट कॉपी में भी। हार्ड कॉपी में आपके पास आएगा इन द पेपर फॉर्म थ्रू प्रिंटर। डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें प्रिंटर, मॉनिटर शामिल हैं, स्पीकर्स हैं, प्लॉटर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप उसको वैसे ही देख रहे हैं मॉनिटर पे, तो वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में भी उसको हम देख सकते हैं। और डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। Now comes the last stage of EDP cycle, that is storage. इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेटा प्रोसेसिंग के बाद, आउटपुट के बाद जब हम तक आया है, तो हम उसको किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें उसको लेटर यूज़ के लिए करना है तो हम उसको सेव कर सकते हैं किसी जगह पे। इस पर्पस के लिए डिफरेंट स्टोरेज मीडिया एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड। मोस्ट कॉमनली अगर हम बहुत बिगनिंग से शुरू करें तो फ्लॉपी डिस्क है, उसके बाद सीडी है या हार्ड डिस्क है, या इसको आप डेटा ट्रैवलर्स कह सकते हैं, यूएसबी। इस फॉर्म में हमारा जो है वो आराम से डेटा स्टोर हो सकता है, और हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या लेटर यूज़ के लिए हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह ताला इसका रिटन वर्क आपको पोस्ट किया जाएगा। इससे पहले भी कुछ चीज़ें इसकी पोस्ट की गई हैं, मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में इसकी पीपीटीज आपको दूंगी, ताकि आप इजीली अपना रिटन वर्क कंप्लीट कर सकें। थैंक यू एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।